ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি রাজস্থান। আশা করছি ভরপুর একটা দুর্দান্ত ভ্রমণ সফর হবে এবং অভিজ্ঞতা হবে। Reached Jaipur airport safely and looking forward to a great time in Rajasthan. দ্বিতীয় রাম সিং যখন জয়পুরের রাজা হলেন, পুরো শহর তিনি রাঙালেন মেটে গোলাপি রঙে, আর ইংল্যান্ডের প্রিন্স অফ ওয়েলস ঘুরতে এসে নাম দিলেন পিঙ্ক সিটি। বেড়ানো শুরু হলো সিটি প্যালেস দিয়ে। এটি একটি রাজকীয় বাসভবন। প্রাসাদটি ভারতীয়, মুঘল এবং ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর একটি চমৎকার মিশ্রণকে প্রতিফলিত করে। লাল ও গোলাপি বেলে পাথরের ব্যবহার এই প্যালেসের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। মহারাজ দ্বিতীয় সোয়াই জয় সিং এর নামেই এই শহরের নাম জয়পুর। শহরের তিনটি প্রধান দ্বার উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম। फर्स्ट महाराजा थे सवाई जय सिंह थे, वो आमेर के लास्ट राजा थे। उन्होंने 1727 में कैपिटल आमेर से जयपुर शिफ्ट कर दिया, तो 1727 में जयपुर का फॉर्मेशन। आमेर के बाद ये येलो वाला बिल्डिंग है, फ्लैग के साथ में जयपुर रॉयल फैमिली का रेजिडेंस। আপনারা দেখলেন যে এই যে চন্দ্রমহল দেখছেন, এই যে উপরে আপনারা যদি দেখেন এখানে 5 কালার ফ্ল্যাগ আছে, এটা হচ্ছে স্বাধীন রাজ্যের প্রতীক। মহারাজা মহলে থাকলে এর সঙ্গে থাকে আরেকটি চতুর্থাংশ পতাকা। সিটি প্যালেসের এই জায়গাটা হচ্ছে রেসিডেন্স অফ রাজাস, সেটা কিন্তু আগে দেখা যেত না। সম্প্রতি এটিও ট্যুরিস্টদের জন্য মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ভিতরে প্রবেশ করে একে একে দেখে নিলাম দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস। দেওয়ানি খাসে শাসক রাজ্যের কর্মকর্তা ও অভিজাতদের সঙ্গে দরবার করতেন। এর সব থেকে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে যে উপর দুটো জলাধার এবং গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে কিন্তু এই দুটো আছে। একটা ছোট্ট ইতিহাস আমাদের গাইড ভাইয়ের মুখে শুনে নিই। बहादुर सिंह जी 1902 में इंग्लैंड गए थे, तो इन 2 चांदी के जार को अपने साथ यहाँ से गंगा जल भर के लेकर गए थे। हाँ, एक का वजन बिना पानी के 345 किलो। 345 केजी एकटार ओजन, दोनों मिलके 4000 लीटर पानी आ जाता है। ओह माय गॉड, ये पूरा चांदी का है, माने रूपोर। इसको बनाने के लिए 14,000 सिल्वर कॉइन मेल्ट किया गया। करंट रॉयल फैमिली ऑफ करंट रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर। ओके, महाराजा के यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, महाराजा का मदर, ग्रैंड मदर, ओके, ये सब अभी यहाँ रहते हैं। ओके, दिस प्राइवेट बट स्टिल वी आर एंटरिंग इनटू दिस रेजिडेंशियल एरिया। वो अलग सा टिकट लेना पड़ता है ये रेसिडेंशियल एरिया में घुसने के लिए, तो हम लोग ये मिस करना नहीं चाहते थे। अभी हम लोग किधर है? हम लोग चंद्रमहल। अभी चंद्रमहल में है। नाहरगढ़ फोर्ट उधर पहाड़ के ऊंचा में। पिंक सिटी, ओल्ड सिटी, ओल्ड पिंक सिटी। छवि निवास ब्लू पैलेस। নীল ও সাদা থিমে সজ্জিত এই ছবি নিবাস, অসাধারণ রঙিন নকশা। ছবি মানে চিত্র, আর নিবাস মানে তো আবাস, অর্থাৎ চিত্রে ভরা একটি প্রাসাদ কক্ষ। सीढ़ी बदले रैंप, कारपेट से कवर रहता था। कारपेट से कवर रहता था, ऐसे ही उठते थे। सीढ़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है। শ্রীনিবাস, যা শীষমহল বা আয়নার রাজপ্রাসাদ নামেও পরিচিত, এই ঘরটি আলো ও আয়নার খেলার জন্য বিখ্যাত। এমনভাবে নির্মিত এই হল, যেখানে একটি আলোর কণাও ঢুকলে তা শত শত আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে পুরো ঘরটিকে আলোকিত করে তোলে। এমনই এক খেলা দেখলাম যখন মোমবাতির আলো ছড়িয়ে পড়ল হাজারো আয়নায়, আর সেই আলোয় ঘর জুড়ে তৈরি হয় এক রাত্রি আকাশের অনুভূতি। এখন আমরা যাচ্ছি শোভা নিবাস। এটি মুঘল ও রাজপুত শিল্পের সংমিশ্রণে তৈরি। শোভা মানে সৌন্দর্য বা জাঁকজমক, আর নিবাস মানে বাসস্থান। ঘরের দেয়াল এবং ছাদে রয়েছে রাজকীয় চিত্রকলা, সোনালী অলঙ্করণ, ফুল, লতাপাতার কাজ।
কিছু অংশে আয়নার কারুকাজ তো কিছু অংশে রঙিন কাঁচ দিয়ে সুসজ্জিত। এই যা কিছু সোনালী দেখছেন এইগুলো সব কিন্তু 24 ক্যারেট গোল্ড। गेट है जो 4 सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखो पिकॉक बना हुआ है, रेनी सीजन, मानसून। पिकॉक गेट, ओके। और इधर पीछे देखो ये ग्रीनरी है, इसके ऊपर ये स्प्रिंग को इंडिकेट करता है, स्प्रिंग करता है। ओके। और आगे देखो रेड रोज फ्लावर है, ये हाँ। विंटर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, और ये अंडर रिनोवेशन है, इस पे लोटस बना हुआ है, ये समर को रिप्रेजेंट करता है। ओके। एंड दिस द डांसिंग कोर्टयार्ड। यस, ओपन कोर्टयार्ड है। ओपन कोर्टयार्ड। वो फुल मून में इधर लाइट समटाइम दे यूज ऑयल लैम्प दिया कैंडल्स। ओके। 1830 का 300 इयर्स ओल्ड पेंटिंग पेंटिंग दिखाया है महाभारत का। महाभारत में कौरवों ने चक्र भी बनाया, पांडवों ने चक्र मकर की पेंटिंग। ये भी कब हुआ था? 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी पेंटिंग विथ नाइफ। फोटोग्राफी अलाउड। गेस्ट हाउस मुबारक महल। লালা চিমনলাল বিদেশি অতিথিদের থাকার জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে এটি জাদুঘর অফিস। এটি বীরেন্দ্রপোল। দুপাশে হাতির মূর্তি সেকালের পরিবহন ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহের দ্বারা নির্মিত যন্তর মন্তর আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থান। তিনি জয়পুর ছাড়াও দিল্লি, উজ্জয়িনী, মথুরা এবং বেনারসেও এই যন্তর মন্তর স্থাপন করেছিলেন, যদিও জয়পুরেরটি সবচেয়ে বড় মানমন্দির। लगभग 300 साल हो गए इसको बने हुए। यहाँ अलग अलग यंत्र बने हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है। कोई नाइट में काम करता है, कोई दिन में। दिन में जो काम करते हैं वो सब सूर्य से रिलेटेड है। अच्छा। जैसे कि सन डायल है, सन का सदर्न नॉर्दर्न है, सन अभी कौन सी जोडियाक साइन में चल रहा है, सन का क्या हाइट आया है, अर्थ ने सन को कितना राउंड किया है, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट डिपेंड होता है, इसको कहते हैं जंतर मंतर। लेकिन इसका एक्चुअली ओरिजिनली नाम है यंत्र मंतर। ध्रुव तारा देखा यहाँ से, पोल स्टार जिसको बोलते हैं। आज भी आप रात 8 बजे के बाद इस स्लैब पे आई लगा के इस एरो पे देखते हैं तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देता है बिना टेलीस्कोप के। हाँ, ध्रुव तारा। टेलीस्कोप का आवश्यकता नहीं होता। मेरिडियन लाइन है। हाँ। जब सनराइज होता है इससे तो इस दीवार की परछाई वहाँ टॉप पर रहती है। अच्छा। जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ मूव करता है तो शेडो नीचे आती है। हाँ। तो हमारे को जयपुर का लोकल टाइम बताती है 12 बजे के बाद सन की पोजीशन होती है दीवार के इधर। हाँ तो बिल्कुल। शेडो चला जाएगा उधर, दीवार का शेडो उधर आएगा ना। तो 12 से शाम को 6 बजे तक का टाइम आपको इधर दिखेगा। यहाँ आवर, मिनट और 20 सेकंड तक का टाइम आप देख सकते हैं। सेकंड्स भी? हाँ जी, 20 सेकंड तक का। ओके, एक बार जाके मैं आपको देखते दिखा हैं। सकता हूँ। अभी ये रीडिंग है 12 बजे तक। 12 से 12 बजे तक 15, 20, 30, 45, 45 होके 50, 50 होके 51। ओके। 12 मिनट ऐड करके देखो अभी कितना टाइम हो रहा है। तो सदन में रहेगा तो इधर फुल सन का लाइट रहेगा जैसा अभी है। हाँ। देख रहे हैं आप लोग? अच्छा। हाँ। जब नॉर्दर्न में चला जाएगा तो इधर लाइट नहीं रहेगा, अभी पीछे लाइट नहीं है। तो 6 मंथ सदर्न, 6 मंथ नॉर्दर्न। और ईयर में 2 डेज ऐसा होता है कि दोनों पे लाइट नहीं होता है। और इसका सेकंड फंक्शन ये है कि इससे आप लोग पूरा लोकल टाइम भी देख सकते हैं। रोड का जो शेडो है हाँ। वो टाइम बता रहा है वहाँ पर। যতক্ষণ উত্তর অর্ধে থাকবে এই দিকটায় সূর্যের রোদ পড়বে না, যেহেতু 6 মাস সান রোটেট করে। 27 स्टार है ना, वो सबके नाम देखो हिंदी में इसके ऊपर लिखे हुए हैं। इधर अलग गलती लगे देख लो, अश्विनी, चित्रा, भरणी, प्रजापति, रोहिणी दिखा। इस तरह के पूरा आकाश का नक्शा बना हुआ है। 360 डिग्री का सर्किल है पूरा। वो जो पॉइंट है जैसे लाइन निकल रही है वो लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड को इंडिकेट करती है। बीच में जो वो लाइन जो सीधा लाइन है हॉल के ऊपर से जा रहा है, ये इक्वेटर लाइन है। जयपुर का जो पोजीशन है, जयपुर इक्वेटर लाइन से 27 डिग्री नॉर्थ में है। साल में 12 महीने होते हैं, 12 राशि होती है। सूर्य एक एक महीने की राशि में जाता है, तो 12 राशियों को कवर करता है। इसलिए हमारा महीने के हिसाब से अलग अलग राशि होती है। इस यंत्र का नाम रखा महाराजा ने अपने नाम से, जय प्रकाश यंत्र। देखो पीछे लिखा हुआ है जयप्रकाश यंत्र। तो ये यंत्र जो है 2 भाग में डिवाइड है। इसका ए पार्ट यहाँ है, बी पार्ट वहाँ है। अभी यहाँ गैप में चल रही है, शेडो दिख रही है आपको? हाँ, शेडो गैप में चल रहा है। तो वो वाला यंत्र काम कर रहा है। तो अभी ये वाला नहीं, अभी वो वाला यंत्र काम करेगा। इसमें भी टाइम दिख जाएगा। ये 12 बजे के बाद अभी करीब 1 बजने से 5 मिनट बाकी है। वो जो शेड का पोर्शन है। द बिगेस्ट सन वॉच इन द वर्ल्ड। এই সূর্য ঘড়িটি বৃহৎ সম্রাট যন্ত্র নামেও পরিচিত, যা সময় নিরূপণের ক্ষেত্রে কখনো 2 সেকেন্ডের বেশি হেরফের করে না। সূর্য ঘড়ির অস্তিত্ব আগেও ছিল, কিন্তু জয়সিং সময় পরিমাপ করার এই মৌলিক যন্ত্রটিকে বিষুবাংশ এবং গ্রহ নক্ষত্রের সম্পর্কযুক্ত স্থানাঙ্ক পরিমাপ করার এক নিখুঁত যন্ত্রে পরিণত করেছিলেন। रीडिंग लेना सीख गया मैं दूर से। ये सावी मेरे को सिखाया, मैं बताता हूँ अभी।
सान अभी राइट साइड में आ गया तो उधर है, और अभी इस साइड का पीएम टाइम आ रहा है, AM टाइम PM टाइम आ गया। 4 स्लैब बोले तो 1 घंटा, 1 घंटा बोले तो 12 बजे के बाद 1 बज चुका है, उसके थोड़ा सा आगे गया। প্রায় 20টির মতো যন্ত্র এখানে আমরা দেখলাম, এবং এই সকল যন্ত্র দেখে আর তার বর্ণনা শুনে এটা বেশ বোঝা যায় যে মহারাজা সোয়াই জয় সিং গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় সমানভাবে দক্ষ ছিলেন। পরের গন্তব্য হাওয়া মহল। हवा महल जयपुर के 5th नंबर महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने 1799 में बनवाया। हवा महल 22 स्टोरी बिल्डिंग है और एक प्लेटफॉर्म पर 90 फीट हाइट पे बनी हुई एक वॉल है, और उस वॉल में बहुत सुंदर सुंदर विंडो बनाए गए हैं। उन विंडो से दैट टाइम में जयपुर राज परिवार की रानियाँ, उनकी मेड सर्वेंट, वो सब उन विंडो से बाहर से रोड से कोई भी प्रोसेसर निकलते थे उनको वो वॉच करती थी। লাল ও গোলাপি বেলে পাথরে তৈরি এই প্রাসাদের মধ্যে রয়েছে 953টি ছোট ছোট জানলা, যা জোরখা নামে পরিচিত। হাওয়া মহলের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজকীয় মহিলারা যাতে জোরখা দিয়ে বাইরের জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করতে পারেন। জানালাগুলির নকশা এমনভাবে করা হয়েছিল যে হাওয়া চলাচল করে মহলকে ঠান্ডা রাখত, তাই নাম হাওয়া মহল। পাঁচতলার এই মহলে একটা মজার জিনিস হচ্ছে কোনো সিঁড়ি নেই, আর এই প্রাসাদের মধ্যে রানীদের যেখান থেকে ইচ্ছা এই ঝোরখা দিয়ে তারা যদি চোখ রাখতেন বাইরেটা দেখতে পেতেন। আমরাও দেখে নিলাম এক ফাঁকে বাইরের রাস্তার দৃশ্য। এটা তো গেল জয়পুর ভ্রমণের প্রথম পার্ট। আমাদের আরেকটি পার্ট খুব শীঘ্রই প্রকাশ হবে। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু।